یہ ایک عجیب سی ویڈیو زاہد حمید کا، جس کو آپ لال ٹوپی بولتے ہیں، تو یہ کشمیر کے اوپر بات کر رہا ہے اور خالصتان کے اوپر بات کر رہا ہے، اور چین کو کہہ رہا ہے چین اس خطے کا سب سے بڑا دادا ہے، اور وہ دادا جو سب سے بڑا گنڈا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کشمیر اور اس کے سہارے کشمیر اور خالصتان کو لے سکتے ہیں، پر ہم میں وہ ہمت نہیں ہے۔ تو آپ اس کی بات سنیے، میں اس کی سمیکشا کرتا ہوں۔ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو بہت ورڈ ہوں جو ہماری ساری اس وقت پالیسی ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کشمیر کی سچویشن کو؟ I personally call it a historic betrayal. یعنی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان نے پلیٹ میں رکھ کر بغیر گولی چلائے کشمیر بھارت کو دے دیا۔ یہ لکھا جائے گا تاریخ میں، کیونکہ ہم کنٹمپریری ہیں نا، ہم ہسٹری نہیں لکھ رہے، ہم آبزرو کر رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں لوگ لکھیں گے کہ بازی میں ہوا کیا تھا۔ یہ انڈیا بار بار جو پاکستان نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا عجیب و غریب، جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں تو خود مختار ہو جائیں، یہ ایسے آزاد ہو جائیں، خود مختار آزاد ہو جائیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے آزاد ہو جائیں؟ یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا جنہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا۔ آپ کم از کم آن پیپر ہی، آن پبلک ریلیشننگ ہی آپ ایک اسٹرانگ پوسٹر لے کر رکھتے ہو۔ یو نیور سرنڈر یور میں کشمیر کی انڈیا ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے۔ 1,20,00,000 ڈومیسائل انہوں نے ایشو کر دیے ہیں وہاں پہ تقریباً ہندوؤں کو، یعنی جو کشمیر کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ وہاں پہ اب وہاں اگر الیکشن ہوگا تو وہاں 1,20,00,000 ہندو ووٹ ڈال سکیں گے اس چھوٹی سی ویلی میں، جس میں 70-80 لاکھ مسلمان بستا تھا۔ آپ نے تو آلریڈی ان کو آؤٹ پرفارم کر دیا ڈیموگرافی کے حوالے سے۔ یہی اسٹریٹجی انہوں نے جموں میں 1948-47 میں کی تھی۔ جموں والا مسلم میجورٹی ایریا، انہوں نے وہاں 3-4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس کو ہندو میجورٹی ایریا میں کنورٹ کر دیا۔ اب اگر آپ جموں میں الیکشن کروائیں گے تو وہاں ڈیفینیٹلی ہندو میجورٹی ہے، وہ سارے پرو انڈیا جائیں گے۔ تو یہ کام آپ مزید 6 مہینے کشمیر میں دے دیجئے، آپ 1.5 سال دے چکے ہیں، آپ مزید 6 مہینے دے دیجئے، کشمیر بیکم ہندو میجورٹی ایٹ لیسٹ آن پیپر، ایٹ لیسٹ فار ووٹنگ، فار الیکشن، فار پلیبسائٹ۔ اور آپ یہاں پر دشمن کو فری ہینڈ دیے ہوئے ہیں کہ تم وہاں ڈیموگرافی چینج کرو، ملٹری کنٹونمنٹس بناؤ، کشمیری ریزسٹنس کو ختم کرو، کشمیریوں کو کمپرومائز کرو، ان کو، کیونکہ کشمیری فرینکلی اسپیکنگ جو میجورٹی کشمیری آبادی ہے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتی بھارت کے خلاف مزاحمت کرنے کی۔ وہ ان کے شہر، ان کے بچے ادھر ہیں، وہ رہتے ادھر ہیں، ان کی فیملی ادھر ہے، ان کا کاروبار، ان کی تعلیم ادھر ہے، اور یا تو وہ سر پہ کفن باندھ کے 70 لاکھ لوگ باہر نکل آئے اور بھارت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے جب تک ان کو کوئی باہر سے ایکٹیو ڈائریکٹ سپورٹ نہ ملے، اور جب پاکستان بھی سپورٹ نہیں کر رہا تو یو آر ایکچولی گیونگ اے سگنل ٹو دی کشمیری فریڈم فائٹرز کہ یو آر آن یور اون۔ اور وہ چند 100 بچے، چند 1000 بچے جو سر بکف ہیں، جو سر پہ کفن لپیٹے ہوئے ہیں، وہ ڈیسپریشن میں آ کر لٹرلی ایسے حملے کر رہے ہیں کہ جس میں کامیابی زیادہ نہیں ہے، بس ڈگنیٹی اور آنر سے ایک موت ہے جو ان کو مل جائے گی۔ لیکن اب پاکستان کرے بھی تو کیا کرے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ، داخلی محاذ پہ ہم اس وقت ایک کیوٹک سی سچویشن ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے 27 فروری کے بعد کیا تھا نا، بھارت کے خلاف کیا کیا تھا آپ نے جا کے مارا، اس کو بے عزت کیا، دنیا میں رسوا کیا، پوری دنیا میں آپ نے ڈپلومیٹک پولیٹیکل ہائی گراؤنڈ لیا، مورل ہائی گراؤنڈ لیا۔ اور وہ وقت ایکچولی تھا کہ جب آپ اس کے ایک حملے کے جواب میں دشمن کی اتنی بری طرح کمر توڑتے، آپ نے تو ایکچولی ٹارگٹ مس کیے، پہاڑوں پہ بم گرانے شروع کر دیے نا کہ چوٹ نہ لگ جائے، کہ ہمارا دشمن ہے معصوم بیچارہ، اس کو چوٹ لگ گئی تو تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس نے آپ کی کمزوری سینس کر لی، اس نے دیکھ لیا، آپ کے فورن منسٹر نے کہا وار از ناٹ این آپشن، اور اس کی کمزوری سینس کر لی، اور 6 مہینے بعد آ کے اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا، انیکس کر لیا، جس کی ضرورت اس کو 70 سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ سو دس واز ون گریٹ پالیسی بلنڈر۔ پھر خالصتان کی تحریک شروع ہوئی، یعنی سکھوں کی ساری سکھ فارورڈ موومنٹ جو ہے پورے انڈیا کے اندر، اس نے دہلی کو لاک ڈاؤن کیا ہوا، اور پاکستان کا فورن منسٹر دوبارہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بھارت کا انٹرنل معاملہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ فور گاڈ سیک یار، وہ تو کہہ رہے ہیں بلوچستان الگ کر دیں گے اور کشمیر لے لیں گے اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کر لیں گے، اور وہاں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے تم اس پر ایک اسٹیٹمنٹ
ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान नहीं दे सका कि जी पूरी दुनिया को कश्मीरी फार्मर्स के हुकूक देने चाहिए और ये ज्यादती हो रही है इनके साथ। सिख इंतजार करते रह गए कि पाकिस्तान कोई सपोर्ट करेगा इनको। एंड यू नो द सिख आर द फाइटिंग आर्म ऑफ द इंडियन आर्मी। अगर सिख पाकिस्तान के साथ मिल गए या सिखों में बगावत हो गई तो आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद तोड़ देंगे भारत को। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? अगर आप कश्मीरियों की मदद नहीं कर रहे, वहां आपको डर खौफ लगता है, तो सिखों की मदद पे खौफ आपको आता है, डर लगता है। आप अफगानिस्तान से बात नहीं कर सकते, वहां आपको खौफ आता है। तो यार फिर आप मतलब कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? फॉर गॉड्स सेक लीव, फॉर गॉड्स सेक लीव एंड लेट समबडी एल्स रन द कंट्री देन। इस तरह आप अगर इसी तरह बैठेंगे, मैंने कहा कि देन यू विल एक्चुअली एंड अप like the leadership of 71, Yahya, Mujib and Bhutto and all the establishment of that time, चाहे वो उस वक्त की आर्मी चीफ हो या उस वक्त की आईएसआई चीफ हो या उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब इन्वॉल्व है इस पाकिस्तान तोड़ने में। क्योंकि जब बात करने का वक्त था, जब स्टैंड लेने का वक्त था, तो ये नौकरियां बचाते रहे। तो आप पाकिस्तान you can't do that in Pakistan like this. चाइना के साथ ताल्लुकात तो कैसा देख रहे हैं आपको? आई मीन वी आर इन द राइट डायरेक्शन, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके साथ है। दूसरी तरफ यूएस का प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, खास तौर पे सऊदी अरब पे, ईरान की तरफ भी वो जाना चाहते हैं। सारी ग्लोबल सिचुएशन को और अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं एक्चुअली, एक चाइना एक टर्की है। चलें ट्रम्प तो चला गया, लेकिन हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। अगर इस ट्रम्प कार्ड को हम ठीक से इस्तेमाल करते तो फिर वो डिजास्टर ना करते फॉरेन पॉलिसी में, जिसका अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। चाइना आपके साथ है। चाइना डज नॉट वांट अमेरिकन टू बी इन अफगानिस्तान। चाइना लद्दाख में ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इंडियंस के लिए, गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप यहां से प्रेशर बिल्ड करें इंडिया पर। चाइना आपके पास एक ऐसा काउंटर बैलेंस है इंडिया का और अमेरिका का, आपने इस्तेमाल कहां किया है इसको? We did not benefit from it. हमने उससे सीपैक के पैसे लेने की कोशिश की, हमने उससे डिफेंस अगर कुछ सामान खरीद लिया, परचेज कर लिया, ट्रेड की बात कर ली, लेकिन जो इतने बड़े महल्ले के गुंडे का एडवांटेज होना चाहिए था, हमारे पास महल्ले का बदमाश हमारे साथ खड़ा है और उसके साथ हम अफगानिस्तान में और कश्मीर में और खालिस्तान में अपना वेट पुल करें और थ्रो करें, वो तो एडवांटेज हमने लिया ही नहीं। So what have we done? क्या फायदा उसका? मतलब फ्रेंकली हम महन फरोख्तन व चर्जा फरोख्तन फारसी में कहते हैं, मुल्क भी बेचा तो क्या सस्ता बेचा यार। थोड़े को ठीक से तुम एडवांटेज ले, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लेते इस बात का। टर्की हमारे साथ खड़ा होना चाह रहा था, पहले हमने बेइज्जत कर दिया उसको मलेशियन समिट में। उसका इतना सीरियस डैमेज हुआ है कि नाउ टर्क्स आर रिलक्टेंट टू डील विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। वो डील कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के साथ, नेवी के साथ, पर हम स्टैंड ही नहीं लेते। हम तो मशहूर है यू टर्न के लिए। अब क्या करें? दुनिया में आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं यू टर्न लेके, दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी आपको। दुनिया स्टेबल और रॉक सॉलिड लीडरशिप को पसंद करती है, जो कभी अपनी बात से मुकरे नहीं, स्टैंड ले, जो प्रेशर ले काम करने का। और पाकिस्तान का जायज केस है, कश्मीर पर भी जायज केस है हमारा, खालिस्तान पर भी जायज है, अफगानिस्तान पर भी जायज केस है। हम ठोकेंगे, दुनिया की मजाल नहीं है कुछ कह सके हमको। और एक बात और याद रखिएगा, अब वो अमेरिका नहीं है जो पहले हुआ करता था। अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ मेजर क्राइसिस विद इन। इट्स अ डिवाइडेड अमेरिका, इट्स अ वीकर अमेरिका, इट्स एन अमेरिका व्हिच इज गोइंग थ्रू डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। इसका शुरू हो गया डिसइंटीग्रेट होने का प्रोसेस। और अब यूरोप भी क्योस में, पूरे यूरोप में जो लॉकडाउन, कोरोना, कोविड क्योस है, पूरी गवर्नमेंट तबाह हो रही है, इकोनॉमी तबाह हो गई है। अब जो आने वाला वक्त है वो मशरक का है। खोल आंख, जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से ढलते हुए सूरज को जरा देख। और हमारा के चश्मे उबलने लगे, गराखा चीनी संभलने लगे। बाद में 100 साल पहले ये बात कही थी। ये वक्त है पाकिस्तान का चाइना और टर्की के साथ मिलकर ब्लॉक बनाने का। लेकिन चाइना एडवाइजर जो इस गवर्नमेंट के हैं वो अमेरिकन है। मोहित यूसुफ अमेरिका से आया, वो सीआईए के लिए, सीआईए से बड़ा करीब समझा जाता है अमेरिकन। चाइनीज समझते हैं ही इज एक्चुअली सीआईए मैन, दैट्स व्हाट द चाइनीज थिंक। चाइनीज तो कोई नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी के होते हुए कुछ नहीं हो सके। ये शख्स कुछ नहीं करने देगा, मैं साफ बता रहा हूं आपको। आप चूंकि इसी फॉरेन सर्विस के हैं, आपको लिहाज करते हैं, आप नहीं बात कर सकते। आई कैन से दैट शाह महमूद कुरैशी आपको कोई प्रैक्टिकल काम पाकिस्तान के मफाद में नहीं करने देगा। ये मुनाफिक आदमी है। He's serving somebody else's interests. He's not serving Pakistan's interest. इसके अबाव अजदाद ने
बैटल ऑफ पाकिस्तान की जंग आजादी को हमारी तबाह बर्बाद करवाया था, ये तारीखी डॉक्यूमेंटेड हकीकत है। इस मुल्क पे वो हुक्मरान बनते हैं, मीर जाफर और मीर सादिक के पोते जो है वो पाकिस्तान का सदर बन जाता है आके, ये हमारी तारीख है। ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, पूरे मीडिया को पता है। हारून रशीद ने उस दिन शाह महमूद कुरैशी का पूरा शजरा नसब खोल के बयान किया था कि आबा और अजदाद कौन लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर तहरीक आजादी को चलते रहे। अब शाह में हारून रशीद से लड़े, अगर ये बात गलत है तो उसके खिलाफ तो केस नहीं किया उन्होंने। बट द क्वेश्चन इज प्रेजेंट इनकी जो पॉलिसी है, जो इंडिया को एडवांटेज दे देते हैं, ये कह के वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, खालिस्तान इज एन इंटरनल इशू, हम इस पे इंडिया कश्मीर के साथ, कश्मीर के मामले पर हम टर्की को डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे टर्की के साथ। I mean, these are criminal blunders, absolute criminal blunders. They are not mistakes. टर्की के साथ डिफेंस पैक्ट करने का उसकी इम्प्लीकेशन भी तो है ना ज़हर साहब, हमारे जो खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं और जो इस वक्त हमारे आपके खलीजी, देखिए बात यह है कि खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं, खलीजी ममालिक प्रैक्टिकली अब खत्म हो चुके हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एनी मोर। वो माजी वाली बात नहीं है जिसे कहा, ये मुकम्मल तौर पर इसराइली लॉबी, इसराइली कैंप में जा चुके हैं। ये नए दो शहजादे हैं जो इस वक्त पूरा मिडल ईस्ट पॉलिसी चला रहे हैं, MBZ और MBS। ये बजाते खुद इनकी अपनी रॉयल फैमिलीज के अंदर शदीद फसाद और तसादुम मचा हुआ है। सऊदी अरब के अंदर अनाकी और क्योस है। हज और उमरा बंद होने की वजह से इनकी लोकल इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, और सऊदी अरब की इकोनॉमी तबाह होती है तो पूरे GCC की इकोनॉमी खत्म होती है उसकी वजह से। बहुत बुरा हाल है। ये थोड़े दिनों, आप जो समझ रहे हैं कि हमारे 15 लाख 20 लोग मुलाजमत कर रहे हैं, थोड़े दिनों की बात है, वो सारे बगैर तनख्वाह के निकाल दिए जाएंगे वहां से, वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान को धमकियां देने लगे और हम हमारे ऊपर से चलते हुए गुजर जाए और हमें बुलडोज कर दे। अगेन जैसे बात कही कि अगर आप इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग योर वेट अराउंड, मजाल नहीं है इन अरबों की, इन गल्फ वालों की, कि पाकिस्तान से बदमाशी कर सके। ये सिर्फ इसलिए सख्ती करते हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान इनके आगे लेटा रहता है। ये इन बद्दुओं की आदत है, इनकी स्ट्रैटेजी यही। आप इनके सामने इज्जत से बात करें, इनके आगे लेट जाएं, इनके लिए ड्राइवर करें, इनकी गाड़ी चलाएं, ये आपको कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे। आप इनको ठुट मारें, जूता मारें, धमकी दें, थ्रेट दें, आप इनको दबा के रखें, ये आपको रिस्पेक्ट करेंगे। दैट्स हाउ इसराइली डील विद देम, दैट्स हाउ अमेरिकन डील विद देम। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ दीज अरब्स। हम लोग जिस तरह अफगानियों की एक साइकी है, उस तरह तुर्कों की एक साइकी है। तुर्क गैरत, रिस्पेक्ट और इज्जत को रिस्पेक्ट देते हैं, स्ट्रेंथ को, ऑनर और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉयल्टी को पसंद करते हैं। अरब इन एट्रीब्यूट्स को नहीं पसंद करते। अरब के ये इससे बात कर रहा है बिकॉज बोथ ऑफ देम वेर द टट्टूज ऑफ आर्मी, ही वॉज ऑल्सो ए टट्टू ऑफ द आर्मी। बट पाकिस्तान की एक माइंडसेट ही ऐसी है कि उनको हिंदुओं से लड़ना है। उनका जिंदगी ही हिंदू के करीब था, क्योंकि इन लोग दे कम फ्रॉम, पाकिस्तान में भी जितने भी ऑन टॉप पोजीशंस है, दे कम फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। और इनकी जो दादा परदादा है, दे हैव फॉट अगेंस्ट हिंदूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इन्होंने ही पाकिस्तान को भारत से अलग करके बनाया है। तो इनकी अगर जब तक एक दो जनरेशन्स ख़त्म नहीं हो जाएगी पाकिस्तान से, भारत को इसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। और खैर अभी तो ये और मुमकिन होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आ चुकी है। जो तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस ने 70 साल से किया था, उसको ख़त्म कर चुके हैं मोदी साहब ने। और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। It is going to be good for our Indian Muslims also, because what will happen is they will get moderate, they will understand the world better, especially the Indian Muslims, because they have to get out of that mindset of that जो उनका जो टेररिस्ट कल्चर है, जो मुस्लिम और जो इस्लाम को इन्होंने, इस्लाम की जो अच्छाई है वो उसको हटा के कम्प्लीटली जो इस्लाम का जो जिहाद को, जिसको उन्होंने टेररिज्म करके समझाया है वर्ल्ड को, उसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट कंट्रीज हैव कम आउट ऑफ इट। इट इज़ ओनली फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, टर्की एंड योर सम कंट्रीज इन सीरिया, ईरान, इराक, ये सब थोड़ा सा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस कंट्रीज। द रेस्ट आई थिंक हैव कम आउट ऑफ इट।
सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।